हेलो बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा जब हमने वर्क एनर्जी शुरू किया था तो हमने एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था और काइनेटिक एनर्जी वाज इजी टू आइडेंटिफाइड। अगर किसी ऑब्जेक्ट मोशन है तो हम कहते थे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। बट मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे टाइप की एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद द मोशन। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डेवलप की थी, आपको याद होगा तब भी हमने कहा था कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर किया था, बट दैट थ्योरम इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। वो सिर्फ ये समझाने के लिए थी कि जब आप वर्क करते हैं किसी सिस्टम पे या मास ऑफ सिस्टम पे, तो there is change in the energy. Okay, so that change in energy could be even in the potential energy also. So with this background, आज हम डिस्कस करेंगे कि what is potential energy. Okay, now मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. We discuss the definition and then you will understand कि what is potential energy. So potential energy definition wise क्या है? It is energy that can be associated with the configuration or the arrangement. So that is the first condition. Arrangement of a system of objects that exert force. That is the second condition on one another. Okay. So when you say a configuration or a arrangement, so arrangement, how many things you need? You cannot have arrangement of one object, because one object has no arrangement. There should be a minimum two object, two or more. So it is wrong to say that a potential energy of a pen is so much, because definition says that there has to be arrangement, or arrangement के लिए there should be at least two object, and second thing is that there should be force among those objects. Okay, so just for example, if I give you arrangement, let us say these are the two pen. Okay, and there is a arrangement. There is a arrangement means this pen is at some distance of 15 centimeter from the second pen. Okay, so there is a one condition met, arrangement, and the second condition is there should be a force. So because they have got a mass, so there is a force by Newton's law. Because of the gravity, they will have a force. Okay, right now force is not visible because there are other forces, and that gravity force is very small. Okay, so both the condition I am meeting. There is an arrangement of the two object and there is a force. Now there is a definition says that there should be a potential energy in this. Now where is that energy? It is not shown. So but let us say if I take this pen to space, okay, where there are no other forces, okay, and मैं हट जाता हूँ वहाँ से, तो आप क्या देखेंगे? The pen will move and come closer to each other. That means when they are moving means they have got a kinetic energy. Okay, and you know energy cannot be produced. That is what we have learned. Energy can be only converted from one form to another. So when they start moving, that means they had some energy inside them. और एनर्जी कहाँ थी? कोई बाहर से तो आ नहीं रही है. दे आर इनर्ट ऑब्जेक्ट, सो वो अपने आप से भी एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं. तो दैट एनर्जी शुड हैव बीन इन द सिस्टम. सो द एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ these two masses, and that you call the potential energy. Okay, or another way of looking at the potential energy, it is something hidden, or ये stored energy. You can consider this as a stored energy in the system which has shown you जब आपने उसको freedom दी है. Okay, so stored energy generally analogy एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मान लिए 1 लाख रुपए बैंक में जमा है, ओके, तो आपको जनरली उसकी इतनी फीलिंग नहीं होती, वो दे आर नॉट इन योर हैंड, इट्स जस्ट नंबर्स एंड द पासबुक आपके पास में. सो यू डोंट हैव दैट फीलिंग. फीलिंग कब आती है आपको? जब आपको उसको फ्री करते हैं पैसों को. दैट मीन्स यू ड्रॉ द मनी, ओके, एंड यू स्पेंड दैट, यू बाय समथिंग एंड यू एंजॉय, देन यू हैव गॉट अ फीलिंग. सो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली. सो द एनर्जी वॉज स्टोर्ड इन दैट. स्टोर्ड चीज़ के बारे में आप जनरली फील नहीं करते हैं, बट व्हेन यू गिव अ फ्रीडम दे विल शो इट टू the real stored energy. Okay, just for example, जैसे आप लोग मास 1 मास 2 classes में the students are there. There is arrangement because mass 1 is say 30 centimeter from mass 2 is
2 meters from the mass 3, mass 3 is 5 meters from the mass 4, and so on. So there is a arrangement, okay, and you have got the force also because of gravity. Any mass will have a force, gravity force, so there is a force. So that means by that definition there is a stored energy in all of you, okay, but where is that energy? Show me where is that energy. But it is there, I am sure it is there. It is there if I take all of you to the space and you act as an inert body, okay, what do you see? We will start coming closer to each other and will start pile up. So that means you have converted that energy into kinetic energy. Otherwise आपको kinetic energy कहाँ से मिली? Okay, you had some stored energy that got converted into kinetic energy and that has shown you and you piled up. Okay, so that is the energy, we call it a, what you call a potential energy. Okay, now क्योंकि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं तो हमने जो अरेंजमेंट ऑफ टू मासेज है उसमें हम क्या करते हैं कि एक मास यानी अर्थ को हम एक मास मान लेते हैं और हम अर्थ के रिस्पेक्ट में दूसरा मास मानते हैं. उसके रिस्पेक्ट में जब हम कहते हैं द पैन अर्थ सिस्टम हैज़ गॉट अ अरेंजमेंट. सो इफ यू से दैट पैन अर्थ हैज़ गॉट अ पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग है. ओके, सो जनरली जब आप कहते हो कि mgh, generally when students को पूछता हूँ what is potential energy, so they will say mgh. H because everything is above the earth. Okay, so you look up and you say h, but it is not the h. I don't want कि आप हमेशा इसको as a mgh ही सोचें. Think of a space. मान लीजिए जब मैं अगर आपको कहूँ suppose this is the earth and here there is a ball. This ball is there. This ball is there here. This ball. Okay, this is a ball. So there is a arrangement. This is the earth, this is a ball, and there is a force because it is a mass. So there is a force. Okay, so there is a force is there. Now there is an arrangement. This is the value r. Okay, so naturally there is a stored energy. यहाँ कहाँ h है आपको? So when you look from the outside, it is in space. It is a spacing between the two. Okay, and when you change the, for example, move this mass to here, change the arrangement. Okay, so a new arrangement. Okay, so think like that. अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, you will find there is a stored energy. Where is the h? So there is a distance. Okay, so that is what you should think. That means the energy which is stored because of the arrangement and when the forces are acting on the each other, that energy you call it a potential energy. Okay, now we have to derive the equation. That means how do you work out the potential energy. Okay, so let us say that I remove this definition. Okay, I hope this is clear now. Let us say this is the earth. Okay, this is my mass number 1. This is the mass number 1, and let us say I have got some, this is the mass number 2, and I have got a, let us say this is the mass number 2, I have got a, this is the center of gravity of the mass number 2, let us say this is the mass number 2. Okay, and there is a Fg acting. Okay, so there is a force. Okay, and let us say this is at a distance, let us say I call it a h initial. Okay, so this arrangement has got a potential energy stored in this as per that definition because there is a force is there and this is arrangement, this is at a distance of h1 from this reference level. So let us I call it a, let us say I call it a, आपकी किताब में इसको पोटेंशियल एनर्जी को v दिया है तो I call it a vi. जनरली इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं बट क्योंकि आपकी बुक में v दिया so let me call it a vi. Okay, so there is a potential energy stored in this. Vi is the initial potential energy और this initial potential energy जनरली हम कैसे निकालते हैं, अगर आप डेफिनेशन वाइज भी देखते हैं तो it is the work done by an external force on this object in raising its height from the reference level to h1. Okay,
और नाउ मान लीजिए हमने बाय समहाउ आई हैव रेज दिस टू अनदर लेवल, mass this is raised to another level, that is initial and this is the final level. Okay, and now there is a new arrangement made. Okay, so this is the new arrangement, I call it a H final. This is the H final. So the mass is there, there is a Fg. So this new arrangement has got another potential energy stored. So let us say this is the V final. Okay, now let us say this is now this object, the one it is here now. Okay, and I just touch it. What happened? The object has moved and it has gained the kinetic energy. कहाँ से आई kinetic energy? Because it had a stored potential energy. Okay, it has a stored potential energy which has now shown into a kinetic energy and it has done a work. Okay, so this energy is due to the stored potential energy in this object at this position. Now मान लीजिए अगर यही object जब आपका ये यहाँ था, जब ये यहाँ था and when it has fallen down, okay, what do you think? कहाँ पे एनर्जी इसकी ज़्यादा थी, यहाँ पे या यहाँ पे? नेचुरली आपको लगता है कि जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तब पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा थी बिकॉज द स्पीड वाज मोर. ओके, जब वो यहाँ था तब स्पीड वाज कंपेरेटिवली लेस. सो दैट मीन्स क्या हुआ, द एनर्जी हियर इज मोर देन दिस. दैट मीन्स अगर मैं इसको अरेंजमेंट को चेंज करूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी देन आई कैन स्टोर द एनर्जी. ओके, आई कैन इंक्रीज द एनर्जी हियर. ओके, और इसी कंसेप्ट को आपके जैसे आपके हाइड्रो प्लांट होते हैं, पंप वाटर स्टोरेज प्लांट होते हैं, उसमें यूज़ करते हैं. वो क्या करते हैं कि आपके जैसे जो रिजर्वायर होते हैं लो लेवल पे, ओके, उसको वहाँ से वाटर को पंप करते हैं हायर लेवल पे, हायर लेवल रिजर्वायर पे. और वो कैसे कब पंप करते हैं, जब उनके पास में सरप्लस पावर होती है. क्योंकि सरप्लस पावर जैसे मान लिया नाइट में और या इवन कभी सीजन भी ऐसे होते हैं जिसमें सरप्लस पावर हो, आपको जनरेटर चलाना पड़ता है बट उसकी कैपेसिटी लोड इज़ नॉट दैट इनफ, सो यू हैव गॉट ए सरप्लस पावर, इट गोज वेस्ट. तो उस पावर को यूज़ करके दे रेज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज रेज. और जब उनके पास में पीक लोड आता है तब क्या करते हैं, वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं. दे रन द टर्बाइन थ्रू दिस, दे यूज़ द वाटर, through the pipeline they will run the turbine, and through the turbine they will run the generator. So it's a very useful concept. Okay, और एक चीज़ और है आपको कि यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि मेरे को इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि what is the change in this thing, the change in potential energy which is Vf minus V initial. So change मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, not this initial energy. क्योंकि मान लो अगर कोई मुझे कहे कि मान लो मेरे पास में एक ईंट मुझे फेंकनी है ऊपर, ओके, छत पे, और मुझे कहे कि ईंट जब यहाँ पे है तो इसकी मान लो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ नो मीनिंग फॉर मी. मुझे क्या चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस जब मैं उसको ऊपर फेंकूंगा. मान लीजिए ऊपर 100 जूल है तो दैट मीन्स दैट डिफरेंस 90 जूल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि मुझे पता क्या लगा कि अगर मेरे पास में 90 जूल अगर एनर्जी है तब तो मैं उसको ईंट को फेंकने की कोशिश करूंगा, और अगर उससे कम एनर्जी है तो ईंट बीच में ही मेरे सर पे आके गिर जाएगी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट जनरली, हम वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द चेंज इन द व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा यहाँ पे इट इज़ Vf माइनस Vi. और जब देखिए आपने जब इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ के ले गए हम तो बड़ी है, तो किसकी एनर्जी घटी है, बिकॉज ये एनर्जी कैनॉट, आई मीन इट कैनॉट बी क्रिएटेड. सो अगर इसकी इंक्रीज है तो कहीं डिक्रीज हुई होगी, और वो कहाँ डिक्रीज हुई है, इन द वर्क ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया है. ओके, यू हैव स्पेंड सम एनर्जी टू टेक इट, लिफ्ट इट अप टू दिस पोजिशन और दिस अरेंजमेंट. ओके, सो यू हैव स्पेंड द एनर्जी, दैट मीन्स आपकी एनर्जी जो थी वो आपने जो ग्रेविटी की जो वर्क था उसके अगेंस्ट में किया. और ग्रेविटी का वर्क क्या है आपको पता है, द वर्क ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा हुआ है. वर्क ऑफ ग्रेविटी इज व्हाट इज फोर्स इनटू द डेल्टा एच, ओके, इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन P and delta H. But cosine of the angle, because it will give you only plus or minus sign depending upon if you go up
it will minus because angle between FG and this will be 180. When you come down it will be plus. Okay, so if I neglect this at the moment, then हम क्या कर सकते हैं कि in general work of gravity is given by Fg into delta H. Okay, now मुझे इतना पता है कि जब Vf इंक्रीज होता है, ओके, तो वर्क ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होती है, ओके, और जब ये डिक्रीज होता है तो वर्क ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होती है। यानी इन द सिंपल टर्म, जब मान लो अगर ये यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो क्या हुआ, इट इज़ ग्रेविटी इज ऑल्सो डूइंग द वर्क, ओके, सो दैट मीन्स ये आपकी इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, ओके ओके, तो इंक्रीज किसकी होगी, तो ग्रेविटी हैज़ इंक्रीज द एनर्जी, ओके, सो दैट मीन्स in nutshell what I can say that change in potential energy delta V is given by negative of the work of gravity. This is the basic equation. I'll again read it. Change in the potential energy, okay, of the system of masses or the arrangement will be equal to negative of the वर्क ऑफ ग्रेविटी, ओके। और मैं अगर इसमें यहाँ देखूँ, अगर मैं डब्ल्यू जी को यहाँ वापस लिखूँ, यहाँ से लिखूँ, तो इट इज़ द एफ जी डेल्टा एच, और एफ जी इज़ वॉट, एम जी, और डेल्टा एच इज़ वॉट, दैट मीन्स इट इज़ द एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ओके, दिस इज़ द डेल्टा वी। और इसको मैं अगर ओपन करूं तो एम जी एच एफ माइनस एम जी एच आई, ओके, दिस इज द डेल्टा वी, ओके। और आप देखेंगे डेल्टा वी इज यू एफ माइनस वी एफ माइनस वी आई, दैट मीन्स दिस इज वॉट, दिस इज योर वी एफ, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ओके। नो, यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं, दैट मीन्स अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। सो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस, ओके, विथ रेफरेंस टू दिस whatever level you have selected, okay, so this is different than the difference in the potential energy. So यहाँ से क्या जनरल कहते हैं, अब जनरल फार्मूला for the potential energy due to gravitational field will be equal to mg into h। और ध्यान रखिए h क्या है आपका, h is a reference point, reference point, आप जहाँ से उसको सेकेंड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने यहाँ रेफरेंस लिया आपके, ओके, तो क्या होगा आपका H1 नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ लिया रेफरेंस तो क्या होगा, VF ये जीरो हो जाएगा, ओके। व्हेन आई टेक रेफरेंस हियर दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हियर इज जीरो। सो इट विल डिपेंड अपॉन कि आपने कहाँ रेफरेंस लिया, द H विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो द माई सजेशन इज कि आप हमेशा द लोएस्ट जो रेफरेंस होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है, यू ट्राई टू टेक दैट एज ए रेफरेंस, ताकि सारे आपके जो H1 सारे ऊपर पॉजिटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अगर ये कोई एक मान लो बिल्डिंग है, ओके, और ये बिल्डिंग है, ये नीचे ये डोर है, और आपके कोई एक यहाँ पे मान लो एक टेबल है, ओके, एंड हियर इज़ अ बुक, ओके, और ए बी और मान लीजिए यहाँ विंडो है, ओके, एंड सेकंड इज लाइक दैट, एंड हियर देयर इज अ ग्राउंड। तो अगर मान लीजिए बुक ये देयर आर 3 पोजीशन ए बी सी, और आपको न्यूमेरिकल में आता है ये पोजीशन में, अगर आपको देखिए बुक अगर पोजीशन ए में है तो आप रेफरेंस क्या लेंगे, इस टेबल को लेंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल में बुक बी पोजीशन में तो आप क्या लेंगे, इसकी इस फ्लोर को लेंगे रेफरेंस पॉइंट। और अगर आपको बुक अगर इसके बाहर है तो आप लेंगे अर्थ को रेफरेंस पॉइंट में। सो दैट इज वाई दैट विल मेक ऑल योर द एच और वाई वॉट एवर यू सेलेक्ट विल बी पॉजिटिव, ओके। सो दैट इज द वन एडवाइस। सो नाउ
we have found out कि how to calculate this. Now ये equation क्या कहती है कि delta V that is change in the potential energy is equal to the work of gravity. Work of gravity is equal to the force, gravitational force multiplied by a change in the arrangement, change in the position delta x, or I can write force is equal to minus, आप देखिए ये क्या है in a differentiation term delta v by delta x. Delta v by delta x nothing but I can write here dv by dx. Okay, force I can write as a dv by dx. Okay, so that means अगर मेरे को मान लीजिए किसी x डायरेक्शन में अगर मेरे को फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है और मुझे फोर्स निकालना है, तो आई विल जस्ट टेक ए डिफरेंशिएशन. जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया कि पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज पर दिस along the x axis. Okay, find out what is the force required to satisfy this equation. तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. That means you will find out force is equal to differentiation of this. That means minus 8x, or because it is a vector, so it will be I. So this is how you can use this to even find out the force. और इसका उल्टा भी समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि फोर्स दिया है इन x डायरेक्शन में, मान लो आपको दिया हुआ है fx दिया हुआ है. ओके, fx दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, fx इज नथिंग बट fx, इस इक्वेशन से fx इंटू डी एक्स, fx इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू dv माइनस dv. ओके, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x1 टू x2, और इस that will give you the v. This will be equal to, that means you can say v is equal to v final and v initial. x1 to x2 मतलब v final minus v initial will be equal to your integration of x1 to x2 and this force fx dx. Okay, this is how आप इसको v भी निकाल सकते हैं. This is nothing but this is equal to your change in potential. Okay, so these are the equation. You can use it like this to solve the numerical. Okay, now ये तो था आपका gravitational potential energy. Potential energy की एक और टाइप है which has nothing to do with the gravity, which is you call it a elastic potential energy. So there is second type which we will call elastic potential energy. Now ये क्या energy? This energy has to do with the deformation of the object. Okay, जैसे for example इसके अंदर में आता है आपकी स्प्रिंग और ये आपके कैटापुल्ट, वो जिसे हम गुलेल कहते हैं, कैटापुल्ट वगैरह. जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल लीजिए, मान लिए सपोज यू गॉट दिस स्प्रिंग, दिस इज अ मास. ओके, अब जब आप इसको अब देखिए, नाउ दिस इज अरेंजमेंट इन द सेंस, समझ लीजिए एक पॉइंट मास समझ लिए. so these are the masses or they are having there is a spring force is there, so there is a force and there is a arrangement of the mass is there. और अगर आप इसको अगर पुल करेंगे, you pull it like this, so what happened, you are changing the arrangement. ये जो पहले मास जो दूरी यहाँ से यहाँ थी, अब आप देखेंगे वो कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया. ओके, जो यहाँ था ऊपर और जो नीचे था यहाँ, वो यहाँ से यहाँ आ गया. पॉइंट पे आपने you have changed the arrangement. So whenever you have changed the arrangement, as you have seen, the changing the arrangement, there is a energy stored in that. और आपने देखा भी होगा कि स्प्रिंग को जब मैं पुल करूं और वापस छोड़ूं तो there is a energy stored in that. Okay, so this is the another type of energy that is called the elastic potential energy.
और हम उसका सेम कंसेप्ट यूज़ करके हम इसके लिए भी वो फार्मूला डेवलप कर सकते हैं. दैट इज व्हाट यू से, वी कैन से दैट डेल्टा वी, change in potential energy of the spring will be equal to the change will be negative of the work done by spring. work done मैं इसको S से रिप्रेजेंट करता हूँ, that is the work done in the spring. और हम जानते हैं कि work done in the spring क्या होगा, माइनस ये 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, x इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/2 k x फाइनल स्क्वायर. दिस इज योर डेल्टा वी, ओके. और आप जानते हैं कि दिस इज, अगर मैं इसको माइनस साइन को अंदर लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स ये क्या होगा, 1/2 k x फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 k x इनिशियल स्क्वायर, ओके. दिस इज द डेल्टा वी. और नाउ ये क्या है, ये आप जानते हैं, दिस इज द एनर्जी स्टोर. दैट मीन इट इज द u स्प्रिंग u s फाइनल minus u initial, okay. This is what we know it. That means I can say कि this is nothing but this is equal to 1/2 k x square, okay. That means delta v, और say it is a spring, जबकि x क्या है, x is the position relative to equilibrium. This is position relative to equilibrium. मतलब क्या है, वो स्प्रिंग ना तो स्ट्रेस्ड है ना ही कॉम्प्रेस्ड है. दिस x इज रिलेटिव टू दैट पोजिशन. सो इफ इट इज यू आर पुलिंग इट, मतलब x इज पॉजिटिव, यू आर कॉम्प्रेसिंग मीन्स x विल बिकम नेगेटिव. सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन फॉर द spring, energy stored in a spring. So this was all about the potential energy. अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज करूं तो मैंने देखिए यहाँ नोट किया है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम. ये हमने देखा, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मासेस एंड इज रिलेटिव क्वांटिटी. इट इज़ रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट, ओके, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0. आप देखा होगा हम जो डे टू डे भी जब लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हम किसी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते. हम ये कहते हैं कि एक्स हैज़ गॉट अ मोर पोटेंशियल देन राम, और हैज़ गॉट अ 4 times पोटेंशियल देन श्याम, और लाइकवाइज. सो सेम अप्लाइज हियर आल्सो. इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी. पॉइंट 2 इज इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. आपने देखा होगा जब हमने डेफिनेशन दी थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तब कहा था कि बोथ शुड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर. कौन सी फोर्सेस होनी चाहिए? ऐसी फोर्सेस जिसके अगेंस्ट अगर मैं वर्क करूं तो दैट वर्क शुड बी स्टोर्ड, दैट एनर्जी शुड बी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम. और वो कहाँ पॉसिबल है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. और बल्कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन देखने का मुझे एक और नया तरीका मिल गया. कैसे कि मान लीजिए, सपोज मान लीजिए ये बॉल है और ये एक मान लीजिए पैराबोलिक पाथ में स्पेस में, और मुझे मान लीजिए वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना बिटवीन दीज टू पॉइंट. तो एक तो तरीका है कि आई यूज सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट. एंड दूसरा तरीका क्या है, विद दिस नॉलेज, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन निकाल लूँ और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन निकाल लूँ, आई टेक द डिफरेंस, दैट विल गिव मी द वर्क ऑफ ग्रेविटी. सो एक और तरीका मुझे मिल गया बल्कि टू फाइंड आउट द वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब थर्ड पॉइंट कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजिशन इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट against the action of a conservative force in order to shift it from a reference point where the potential energy is considered as 0 to the present position. ये पॉइंट क्या है? वो आपका जो आपने mgh वाला था, ओके, दैट वाज रिलेटेड टू mgh. दैट मीन्स अगर आपको ये अर्थ है और यहाँ से अगर आप यहाँ नापना चाहें व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो इट इज़ अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ओके. फोर्थ कहता है, इंक्रीजिंग द एक्स, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस,
if potential energy increases, F is in the negative x direction. That means कई दफ़े स्टूडेंट पूछते हैं सर कि ये इंक्रीज और डिक्रीज ये हम कैसे देखें, तो मैं उनको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए सपोज आप किसी कॉन्फ़िगरेशन को इन द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगर आप चेंज करते हैं और अगर आप उसको फ्रीडम देते हैं उसके बाद में, तो अगर तो वो वापस कॉन्फ़िगरेशन बैक टू अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, दैट मीन्स यू हैव इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस केस में था, अगर मैं इसको यहाँ से इस लेवल को किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर ले जाऊँ और इसको फ्रीडम दे दूँ तो क्या होगा, इट विल अगेन ट्राई टू कम बैक, दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज। और ऐसे केसेस में एफ इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ग्रेविटी इज अगेंस्ट। ओके, सो रिवर्स अगर ऐसा होता है, दैट मीन्स आपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया और इसको फ्रीडम दे दी और ऑब्जेक्ट इज नॉट trying to go back to its original position, that means there is a decrease in the potential energy. Okay, so this point is that, and vice versa on increasing the x, that is separation, the potential energy अगर decrease होती है तो force is in the positive x direction. That means ये आपके charges के केस में अप्लाई होता है। मान लो ये दो चार्ज हैं पॉजिटिव, और नेचुरली अगर जब आप इसको सेपरेशन करेंगे, आप इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपके y डिक्रीज होगा, v डिक्रीज होगा, और नेचुरली they have got the repulsive forces. Or the fifth point is, that is the change in the gravitational potential energy is the negative of the work of gravity. ये हमने जो derive किया था equation. और in case of a spring, it was change in the potential energy of the spring was negative of the work of spring. And the last one is, it is a scalar quantity, dimension is m L2 t minus 2, same as that of energy. Okay, so this is the summary, and I hope आपको अब potential energy का concept clear हुआ होगा। मैं I close it here, and my again two advice कि आपको जो कुछ भी नया लगा आज आप उसको नोट करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।